टाइम बाद हम कोई शूट कर रहे हैं एंड एक्चुअली हम काफी टाइम बाद मिल भी रहे हैं प्रॉपर वाला. हम बीच में मिले थे बट इट वाज वेरी हाफ हार्टेड. आधे घंटे के लिए मैं आई थी तो छोड़ो. वेरी बिजी पर्सन शी इज. तो इस चक्कर में वी कुडंट रियली मीट अच्छे से. सो टुडे वी आर हियर एट माय हाउस फॉर अ नाइट स्टे. गाइस स्किन केयर का अलार्म बज गया जो मैं करती हूँ. Anyway, तो today we are doing a night stay at my house. Yay! तो आज हम काफी cringe हरकतें करने वाले हैं in the name of recording content. So you guys will have to bear with us. A few moments later. How our friendship has changed over time. I think this is a good topic. हाँ. I think this is something we can talk about. Yes. So for those who don't know, और I think almost pretty much everybody knows अगर उस चैनल पे somehow पहुंच गए हैं तो. But we're best friends. We've been best friends since school time and मैं उस स्कूल में KG से थी. So like KG to 12th I was in the same school. Yes. She came to that school in 5th class. 4th class. 5th class. हाँ. 5th class and हम we were in the same group but because उस time पे the groups were like so big क्योंकि it was like पूरा section में 2 groups होंगे and like वो एक group में एक section में अगर मान लो 40 बच्चे हैं so it's like 20 people in one group and उस आप लोग सोचे कि है ऐसा ही होता था हमारे स्कूल में and so because we were in such a huge group we could not really connect one on one उस time पे for like a long time. Like I knew ये कौन है, she knew मैं कौन हूँ, but because the people around us were so they were changing our opinions about other people so we could not really keep an opinion. We were not mature back then. 5th class में कौन ही mature होता है. हाँ. Also मेरा इतना मैं आती भी नहीं थी to be very honest because एक तो दिल्ली से मूव करना to नोएडा was very big thing for me and वहाँ की friends छोड़ के यहाँ आना तो मैं काफ़ी सालों से बहुत थोड़ा अप डाउन करती रही हूँ एंड मेरा मन नहीं करता था मैं से यार मुझे दिल्ली जाना है. तो वो चीज़ें तो वो भी एक रीज़न था कि भैया मैं इतना कनेक्टेड नहीं थी सबसे. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप मुझे बोलो कि मेरे 7th क्लास से दोस्त बनने चालू है उसके पहले से मैं इतना आती भी नहीं थी. Yeah, she was the quiet girl. Yeah. Like she was very quiet. Very back quiet. then. And I don't know, like पहले तो हमारा ऐसे ही था. Like we would talk normally जब भी हम बात करते थे. Hi Purti, hi Prisha, how are you? We were fine, we were good, we were kind with each other. But हमारा कभी one-on-one convo नहीं हुआ. Till 11th class, that's like 6 years almost. Yes. 6 साल तक we had no one-on-one convos, and then I think the only time we like properly talked पहले was when we were in choir group. हाँ करेक्ट. choir में हम थे तो like assemblies के लिए जो practice होती थी and stuff तब like बात that, करते थे. तब बात करते थे. कुछ तब हमारी क्लास से we were the only 2 in the choir. या बाकी 2-3 थे तो they would be आपस में busy. वो वैसे भी अलग ग्रुप में थे तो. हाँ. We're talking about the same people. ना? अच्छा ओके अच्छा वो भी थे. हाँ. अरे वही लोग हैं. यार मेरे को सही में याद नहीं रहा कि ये दोनों भी थे हमारे ग्रुप में. Those people existed as हाँ. well. But so we would talk तब, but तब भी बहुत open, like बहुत ऊपर से बात होती थी. We never like got to know each other in depth. Then 11th class में because COVID आ रखा था तो उस टाइम पे ना roll number wise हमें बुलाया जाता था. So एक particular set of roll numbers इस दिन आएंगे, बाकी set अगले दिन आएंगे, वैसे divided था. So like 15 students in one class, वैसा scene. And तब because teachers भी बहुत कम आ रहे थे, we would have like free periods throughout the day. बहुत free time होता था हमारे पास. तब we would talk, तब we would you know, तब हमारा interaction शुरू हुआ. Even though we would sit अलग-अलग seats पे, क्योंकि तब वो seating arrangement था. But तब we like started talking थोड़ा बहुत. हाँ. And then me like हम लोग almost आगे पीछे बैठते थे just. हाँ. Just like first second seat पे होते थे. Because 11th में वो भी होता है ना कि आपके sections divide हो जाते हैं and उससे पहले अगर हम थोड़ा flashback पे जाए तो मेरी 9th क्लास में एक दोस्त हुआ करती थी, एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी. तो जब हम अलग हुए 11th में आई डोंट नो उसके साथ ही भी उसके तक ही वीडियो पहुंच ही नहीं पहुंचा. आई डोंट नो. I don't think she's gonna know तो उसकी बात कर रही है. उसे शायद पता चल गया होगा. Anyway. क्योंकि मेरी 9th में एक ही बहुत अच्छी दोस्त थी. मतलब मेरे ना स्कूल टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्त बहुत कम रहे. मतलब इन उंगलियों में आ जाएंगे इतने दोस्त रहे हैं बिकॉज
मेजर रीज़न बहुत सेटबैक रहा मेरा दिल्ली से यहाँ आने में, क्योंकि वहाँ के मैंने सारे अपना ग्रुप छोड़ा एंड इट वाज अ रियली बिग थिंग फॉर मी। तो मैं यहाँ बहुत कम दोस्त बनाए, मतलब स्कूल में बहुत कम दोस्त बनाए थे मैंने, एंड सोसाइटी में भी ऐसी था। तो जब हमने लाइक 11th जब हम लोग अलग हुए, उसका अलग सेक्शन मेरा अलग सेक्शन, तो हमारी बात करनी बंद हो गई। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता था यार मैं सेक्शन में अकेली हो गई। तो मुझे तब लगता था कि हाँ हमारे ग्रुप में पूर्ति नाम की एक लड़की थी और हमारे कोयर में हमने बात करी है साथ और बहुत सारी चीज़ें हमने करी है साथ। तो चलो इससे थोड़ा सा बातचीत बढ़ाते हैं टाइप्स। तो वो जस्ट आगे बैठे थे तो हम कई बार बात कर लेते थे। लंच में वी वर अलाउड टू लंच, ये सीट पीछे कर लेती थी अपनी और हम साथ में लंच करते थे। We would talk and even उस time पे भी our main like convo starter was always Rhodey's and Spitzvilla रोडी से because that was like a common ground और कोई क्लास में देखता नहीं था। In fact they would be like क्या cringe shows देखते हो तुम लोग, reality shows कौन देखता है, blah blah blah। We were like we like it। यस। And then main हमारा 12th में शुरू हुआ when 12th में summer okay 12th में ना क्या हुआ था The starting- 11th में शुरू हो गया था शायद। main वाला 12th में हुआ था। अच्छा याद समर वेकेशन के सुधांशु बाद। सर होते थे हाँ 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 सुधांशु सर होता था। यस यस। our class teacher। So वैसे वो 11th में भी थे बट हाँ ठीक है। 11th तो काउंट ही नहीं होगा। 11th काउंट में नहीं हम गए होगा। कहाँ थे? हाँ। 12th में भी स्टार्टिंग का समर वेकेशन से पहले का ना बहुत मिक्स्ड अप था बिकॉज हमारी क्लास डिसाइड नहीं हो रखी थी कि कहाँ बैठेंगे। हाँ बैठेंगे। 12th सी के बच्चे। मुझे एनीवेज हाँ सो कहाँ थे हम? 12th 12th सो 12th में बिकॉज क्लास डिसाइडेड नहीं थी, बहुत कम बच्चे आते थे। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि 4-5 बच्चे आ रहे हैं सिर्फ बिकॉज 12th क्लास इज लाइक दी फनेस्ट। ये तो बिल्कुल नहीं आती थी। मैं तो जनरल में 12th में नहीं आती थी बट मेरे रीजंस डिफरेंट थे। मेरी तबीयत बहुत खराब obviously, थी। हाँ, पता है मुझे। बट इन जनरल आल्सो आई वाज लाइक पढ़ना है ना घर पे जितना मेरा अप टू 8th स्टैंडर्ड हुआ है ना, हाँ। क्यों ही करना है, नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, दिल्ली जा रही हूँ मम्मी, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैंने नहीं आना। Bro, उतना ही इसका 12th में हुआ है। उतना हाँ बिकॉज आई डोंट नो इट जस्ट डिफरेंट रीजंस और बहुत चीजें। वो नहीं था। तो 12th में फिर समर वेकेशंस के बाद आई रिमेम्बर 4th जुलाई 5th जुलाई डेट थी। तब मैं आई क्लास में, तब फिर सीटिंग अरेंजमेंट हमारा वो स्टार्टिंग में तो वो था कि लाइक वो बेंच पे ऐसे लगाते थे जो ऐसे वो उठते थे टेबल। फ्लैप हाँ। That was disgusting. I'm still telling you that are the worst type of tables to have in a classroom. कोई डेस्क ही नहीं है, कहाँ डालोगे आप सामान अपना? बट या उसके बाद फिर हमारी नॉर्मल वाली प्लास्टिक वाली प्रॉपर चेयर्स आई, वो ब्लू कलर और ग्रे कलर वाली एंड देन वो डबल होती थी। तो तब ये फर्स्ट सीट पे बैठी हुई थी, नहीं सेकंड सीट पे बैठी हुई थी। सेकंड पे फर्स्ट पे कहते ना बैठो। We are not the first seaters. वी आर Front मिडिल benchers. बेंचर्स। मिडिल बेंचर्स थे हम हमेशा से। तो she was नहीं sitting- थर्ड पे बैठी थी हाँ तेरे आगे हाँ, तो आई रिमेम्बर क्योंकि वो 4 का ग्रुप था। ओके हाँ स्टार्टिंग में 4 का ग्रुप बैठता था। सो शी वाज सिटिंग ऑन द थर्ड बेंच हाँ। मिडिल रो एंड देन आई केम एंड आई सॉ हर एंड आई वाज लाइक यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है, लाइक मैं यहाँ बैठ जाऊँ। शी लुक्ड अप टू मी लाइक हाँ बैठ जाओ एंड वो दिन गया, आज हम यहाँ बैठे। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ हाउ वी यस मेट। बस उसके बाद तो पूछो ही मत Then we कैसे connected कैसे। so much it's not even funny। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका ऑलरेडी एक ग्रुप था, yeah 3 तीन लोग थे ये लोग। मतलब that was me, our third friend चाय and then एक और दोस्त था हमारा। So like that was like a group। तो ये लोग 3 ग्रुप थे एंड उस 3 ग्रुप में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग भी शायद कनेक्ट कर पाते होंगे या नहीं कर पाते होंगे। एक नई इंसान अगर आपके ग्रुप में आए तो ऑब्वियसली प्रिवेसी डिस्टर्ब होती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हो आप नहीं चाहते हो। बट मुझे नहीं पता मैं कैसे उस ग्रुप में आ गई और मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और ये लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। मतलब कई बार ना आपको दिख जाता है, मुझे तो दिख ही जाता है कि ठीक है ये बंदा ये बंदी मुझे पसंद नहीं करती, ओके बैक ऑफ। भैया नहीं दिखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ओके एक्सेप्ट कर लिया। yes। मेरे साथ एक और था हमारा तो वो भी सेम टाइम पे उस ग्रुप में आया था, बट उसके साथ ऐसा हो गया था कि वो आफ्टर कुछ कपल ऑफ मंथ्स yeah like वो निकल गया उस ग्रुप से। अपने कुछ ऐसी चीजें हुई तो वो थोड़ा डिस्टेंस अपने आप ही हो गया था। अपने आप ही हो गया। बट हाँ तो हम
3 अब रह हाँ फिर हम 4 हो गए 4 हो गए एंड देन अब हम वो 4 से कट के 3 हो गए 3 हो गए कुछ चीजें बहुत चीजें हुई तो वो हम 3 हो गए बट या देन शी लाइक बिकेम लाइक माय पर्सन मेरी लाइफ की नाउ वी हैव रीच्ड दैट वो सिस्टर्स वाला पॉइंट कि लाइक करेक्ट आवर होल फैमिली नोज कि हाँ प्रिशा के घर गई है ठीक है फाइन या ये पूर्ति के घर है ओके तभी मेरी मम्मा भी बहुत चिल थी कि ठीक है यार पूर्ति के घर जा रही है क्योंकि मेरी मम्मी जब भी मैं नाइट स्टेज के लिए जाती थी तो मेरी मम्मा was like, कहाँ है ठीक है क्या खाया दिस इज नॉट कॉल पे कॉल अब आते हैं वो नहीं फेविकॉल कहाँ रखी है ये और ये ये वो छोड़ो खाना खाया भी गिरा पता है ओए फेविकॉल का है अच्छा सुनियो तेरे डेस्क में ये थी वो क्या है तो मुझे कॉल्स बीच बीच में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको ऑब्वियसली काम है और उनको पता है ये सारी आलतू फालतू चीजें इसी के ड्रॉर्स में होगी फैशन डिजाइनर गाइस तो भैया कहाँ रखी है ये बता दो तो वो वाला सीन है अब yes and as for how our friendship evolved I'd say like even 12th से अब तक it's been what हम third year में आने वाले हैं it's been like 2 years since we passed 12th grade तो अगर मैं 12th को काउंट करूँ तो 3 साल in 3 साल में we have grown a lot as separate people also and like as a duo of best friends also ऑल्सो हमारे पेरेंट्स जो भी हमें मिलता भी एक जैसे आंटी Yeah. मिली थी कि you both look It's very similar similar मतलब- very similar मेरी एक cousin है वो भी ये कहती है कि like हाँ. you both look like exactly same एग्जैक्टली सेम तो हमें वही लगता है हमने यार पिछले जन्म में बहने ही होंगे हम। बहने हो गए बस थोड़ा बहुत परेशान कर दिया होगा So, इसलिए इस जन्म में भगवान जी ने अलग घर में दूर दूर मिल लो बट so yeah but I guess वो हमारा similarities is a lot because of our facial features and hair especially hair which is like a big factor एंड मेरी मम्मी इसको बोलती है कि प्रिशा को समझा ये बिल्कुल केयर नहीं करती एंड एक्चुअली मेरे से ये मैनेज नहीं होते ये आप भी देखोगे अब वीडियो में कभी मैं खोल रही हूँ फिर मेरा थोड़ा ऐसा सर भारी हो रहा है फिर मैं क्लच लगा रही हूँ फिर मैं खोले बैठ रही हूँ फिर मैं बन बना रही हूँ तो उससे भी ज़्यादा मेरे कर्ल्स खुल जाते हैं तो ये कह रही है कि ये ठीक कर इसको मैं देगी सिखाऊंगी how the curly hair routine works basically दो इसने मुझे बताया बट मुझे वो होता ही नहीं है it's not a lot it's just मुझे भी अब आदत पड़ गई है so that's why now हाँ. I'm like very comfortable with my curly hair करेक्ट because even I was like one of those जो like constantly brushing my hair Correct. straighten कर रही हूँ मैं my straightener was like my life at some point हाँ back till like 7th 8th grade उसके बाद फिर I like learned how to actually like enhance my own curly इसने hair मुझे and stuff. बताया इसमें टाइप्स भी होते हैं मुझे आज तक नहीं पता था मुझे अब पता चला इसमें टाइप्स होता है 4C 4D There are many types of hair 3C curls. पता नहीं क्या क्या So, ओके My curls fall in 3A category 3A no wait CA हाँ category which is curly hair but like not that depth of a curl इसके B और C में है so that is 3C I messed up wait मेरे 3A में है और इसके 3B and C में है there you go because her curls are like more defined हाँ you can see like coils ज़्यादा tight होते हैं that's the difference और मेरे थोड़े soft मेरे थोड़े waves में ज़्यादा आ जाते हैं कुछ कुछ मेरे like this hair is very wavy तो मेरे कर्ल्स थोड़े लूज हैं इसके थोड़े टाइट हैं टाइट बट इसके पीछे की हेयर्स बहुत अच्छी लगती थैंक यू हैं हम खेलते रहते हैं हम एक दूसरे के कर्ली हेयर्स के साथ खेलते रहते हैं हमारा इट्स लाइक चलता रहता है चलता रहता है सो या इवन आई थिंक स्पिरिचुअली भी हम बहुत इवॉल्व हुए हैं बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप सो वी आर वेरी स्पिरिचुअल वी आर वेरी रिलीजियस Correct. हम बहुत लाइक वी आर वेरी इनटू भक्ति एंड गॉड्स गॉडेसेस बट हमारा भी लाइक एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज एंड इन चीज़ों के बारे में भी टॉक अ लॉट टुगेदर एंड कई चीज़ें ऐसी होती थी कि आई वुड टॉक टू हर अबाउट इट शी वुड टेल मी उसके साथ भी सेम चीज़ हुई है ऐसा बहुत बार हुआ है लाइक कि जो लेसन्स मुझे लाइफ में मिले हैं इससे भी वही लेसन्स मिले हैं बस डिफरेंट टाइम पे एंड सेम ऑपोजिट जो इसके साथ हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ है डिफरेंट टाइम पे सो दैट्स आल्सो हैपेंड बहुत चीजें दैट्स व्हाई वी टॉक अ लॉट अबाउट अ सोल कनेक्शन बिकॉज इट्स वेरी एविडेंट कि कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्शन हुआ होगा डिवाइन में दैट्स व्हाई वी आर लाइक दिस अब एंड इंट्यूशन टेलीपैथी वी टॉक अबाउट दिस स्टफ अ लॉट हाँ मतलब हम लोग कह लो वी आर ओल्ड स्कूल वेरी But ओल्ड स्कूल वही हम डिस्कस करते हैं कि यार हम बहुत गलत जनरेशन Generation. में पैदा हो गए it's not about like people would usually say कि like you're pretending to like be very different Very ऐसा different. नहीं है हम actually में बहुत हैं because the things that happen nowadays हम बहुत कम relate कर पाते हैं
whether it be in terms यार of ऑल्सो आपकी फैमिली की वो परवरिश That matters a lot. दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज आपकी फैमिली अगर इतनी भोली है ना, दो हम ये नहीं कह रहे हम भोले हैं ना, not at all. नॉट एट ऑल, बट द थिंग इज We know our boundaries. We know our we know what we respect. हाँ, और आपकी फैमिली ने आपको ये सिखाया है तो हम वहीं चली जा रहे हैं, तो वी नो दैट We're following the path of pure morals which are right for us. मैं ये नहीं कह रही कि like सारे morals यही हैं, ऐसा नहीं है. नहीं. सबके different होते हैं, आपके morals कुछ और होंगे, हमारे कुछ और हैं. But that's how we are. I guess part of it could be because of our family, because of our spirituality, because of our own discipline and reasons. बट नखरे बहुत है हमारे. नखरे बहुत है हमारे. That does not mean कि like we're oh my god so भोले वाले प्यारे प्यारे. नो 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 Not at all. Not at all. सब्जी में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये चाहिए वो चाहिए. Picky as hell. Very picky. वी आर फूडीज बट हमसे खाया नहीं जाता. There you go. हाँ, that is like one of another thing कि like we'll order a lot of food. We like आज तो खाएंगे पेट भर के. ये थोड़ा सा खाते हैं and then we're like okay I'm full. जैसे अभी हुआ लाइक हमने लिटरल 3 चीज ऑर्डर करी है, लिटरल चाइनीज की 3 चीजें, स्प्रिंग रोल जिसमें कितने 8 पीस थे 8 पीस थे टोटल, एंड 8 ने पीछे से खाया, हम 2 भी थे तो हम लोग 3 लोग थे, तो हमसे वही नहीं खाया गया. नहीं खत्म हुआ वो. फिर उसके बाद वाइस पास्ता. Okay guys, context. There's this one biker who is randomly going like I live 10 बज गए ना तभी उसका टाइम हो गया. So I live in a high rise building, काफी ऊपर है, like मेरा फ्लोर 20 से ऊपर रहती हूँ मैं. And इतनी ऊपर भी I have a bay window. I don't even have a balcony in my room. I have a bay window जो कि पूरी sealed off है. There's only one window जो मैं open करूँ तो आवाज आए. बंद है अभी वो window. तब भी मुझे एक बाइकर का शोर आता है from the past 2 years ever since I shifted in this house. And it's been constant daily. He's gonna 10 come at o'clock. 10 o'clock and then he's gonna come at 1:30 or 35. हाँ. And then he's gonna go back. I don't know, like maybe he's coming back somewhere. Then वो वापस. I don't know what the deal is. If somehow he finds this, please stop. It's very annoying. Please. Although I don't. Very random. मुझे पता भी नहीं होगा हम कहाँ रहते हैं. I know, but like it's still. मत करो यार. सीरियसली Bikers मत करो. don't do this. It's और very ये irritating. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके घर पे आती है. इसके घर पे भी आती है. और मेरा घर तो ऐसा है जैसे ऑपोजिट रहती हूँ, बट मेरा जो टावर है ना वो थोड़ा नहीं अंदर की दिखता है, side है. इसके बे विंडो से नहीं दिखता, थोड़ा अंदर की साइड है, वहां तक आवाज आती है यार. That is तो very. और हम जब भी कॉल पे होते हैं, ग्रुप कॉल पे, तो हम दोनों के घर में ऐसी इतनी आवाज. और हमारा जो तीसरा दोस्त है चाहे ये क्या है, What is this background? Like, What is this? और तो उसको भी पता, तो ये लाइक हाँ दोनों के घर पे आ गए. that is something we joke about a lot. हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे? Spirituality. Yeah. Let's talk a bit about spirituality.